All right, guys, let's move forward with section 12A of IBC that has to be read with regulation 30A of IBBI, insolvency resolution process for corporate person regulation 2016. So this basically asks you as a question, can application be withdrawn? That application that has been made under section 7, 9 and 10, can it be withdrawn? So yes, it can be withdrawn. So before admission of application, जब AA ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन जो है वो एडमिट नहीं किया अभी, ठीक है, तब कर रहे हैं तो क्या, और आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन है तो क्या. So before admission of application अगर है, so applicant simply has to take a permission of A and then withdraw the application. But after admission of application है, so there are three part of it. Like after admission of application तो admission तो हो गया application का, but is it before constitution of COC? Is it after constitution of COC but before invitation for expression of interest? Right? Or is it after issue of invitation for expression of interest? So basically, if it is after admission of application but before constitution of COC, then applicant simply has to send the withdrawal application in form FA through IRP. IRP would send to A, then after the approval of A, it can be simply withdrawn. But when application after constitution of COC it is going, but before issue of invitation for expression of interest, so applicant simply has to withdraw the has to send the withdrawal application to IRP. The reason has not to be given over here. IRP would do, IRP withdrawal applications would send it to COC. COC would take 7 days to consider the application, and 90% value approval has to be given. If COC is giving 90% value approval, then within 3 days of COC approval, within 3 days of approval by such COC, IRP would send the withdrawal application to AA, and final approval कब होगा, जब order of AA आएगा, then it would be considered as final approval. Alright, then after issue of invitation but before after issue of invitation for expression of interest, in that case भी same है, application देने के साथ reasoning देना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं. IRP जो है विड्रॉल एप्लीकेशन सेंड करेगा COC को. COC वुड टेक 7 days टू कंसिडर, एंड 90% वैल्यू अप्रूवल देना पड़ेगा. आफ्टर 3 days ऑफ अप्रूवल फ्रॉम COC, विड्रॉल एप्लीकेशन प्लस अप्रूवल ऑफ COC would go to AA and IRP would send that. So this is how we are done with section 12A. So now let's understand section 13. Application to be taken by NCLT. Action to be taken by NCLT after an application for initiating CIRP has been admitted. तो once the application, एक बार admission हो गया, किसका एडमिशन, एप्लीकेशन एक बार एडमिट हो गया, ठीक है, एडमिट कर लिया किसने, NCLT ने, क्या एक्शन लेगी एनसीएलटी क्या एक्शन लेगी. तो एनसीएलटी सबसे पहले क्या करेगी, मॉरेटोरियम डिक्लेयर करेगी. मॉरेटोरियम कब डिक्लेयर होगा बेटा, जैसे ही इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट चालू होगा. इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर, व्हेन द एडमिशन एप्लीकेशन इज एडमिटेड. सो डिक्लेयर करेगी मॉरेटोरियम सेक्शन 13 के अंडर. पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी विद इन 3 days. पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी इन्विटेशन ऑफ CIRP विद इन 3 days एंड कॉल फॉर द सबमिशन ऑफ क्लेम्स अंडर सेक्शन 15. ऑल्सो अपॉइंट करेगी IRP को एज पर सेक्शन 16. सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट अंडर सेक्शन 13 NCLT would take. So what are the action that has to be taken by NCLT after application for initiating CIRP has been admitted? कि पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी विद इन 3 days एंड ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. डिक्लेयर करेगी मॉरेटोरियम on insolvency commencement date, and IRP को अपॉइंट करेगी as per section 16. So now what is exactly moratorium means? Section 14 क्या है? So section 14 talks about moratorium. What is moratorium? So section 14 describe the effect of moratorium declared under section 13. So basically the moratorium that has been declared under section 13, what are the effects of moratorium? moratorium होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, moratorium होगा तो क्या हो जाएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे ये बोला है on insolvency commencement date. Again, what is insolvency commencement date? The date of admission of application. जब AA ने application को admit कर लिया उस दिन insolvency commencement, उसी को insolvency commencement date बोलते हैं. So AA जो है on insolvency commencement date declare
डिक्लेयर करेगा मोराटोरियम फॉर प्रोहिबिटिंग ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटीज नेमली. नाउ व्हाट आर दोज एक्टिविटीज? सो बेसिकली दे आर 4 activities. What are those? Institution of suit or continuation of pending suit or proceeding against the CD, or including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitral panel to other authority. Basically institution of suit, ना तो suit institute हो सकता है, ना ही कोई pending suit है तो वो continue हो सकता है, ना तो उसके जो CD है उसके खिलाफ आप suit कर सकते हो, और ना ही कोई pending suit है तो वो continue होगा against the corporate debtor, including execution of any judgment, या फिर अगर कोई judgment दे दिया कोर्ट ने, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो भी नहीं होगा. कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? ना तो आप उस पर केस कर सकते हो, कोई पेंडिंग है तो वो भी पेंडिंग रहेगा, मतलब कोई पेंडिंग है तो वो भी कंटिन्यू नहीं होगा जब तक मोराटोरियम है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर. इंक्लूडिंग कोई जजमेंट दिया है किसी कोर्ट ने, वो जजमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मोराटोरियम है. डिक्री दिया है, जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रल पैनल और अदर अथॉरिटी. मतलब कैन यू बिलीव इट? जब मोराटोरियम की बात करते हैं, कितना शार्प है ये भाई. मोराटोरियम एक बार लग गया, ठीक है, मोराटोरियम एक बार लग गया तो उस बंदे को कोई भी टच नहीं कर सकता. ना तो आप उसके केस खिलाफ नया केस कर सकते हो, ना कोई पेंडिंग है तो उसको चालू रख सकते हो, कंटिन्यू नहीं हो सकता वो. और कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर दे भी दिया किसी को कोर्ट ऑफ लॉ ने, ट्राइब्यूनल ने, आर्बिट्रल पैनल ने, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा. कब तक? जब तक मोराटोरियम चल रहा है. मतलब मोराटोरियम इज जस्ट लाइक अ रक्षा कवच की कोई भी लीगल चीजें इसको परेशान नहीं कर सकती, legal cases except from insolvency. Now, transferring, encumbering, alienating or disposing of by the corporate debtor any of his assets or any legal right or beneficial interest therein. मतलब ना तो वो ट्रांसफर कर सकता है, ना एनकम्बर कर सकता है, ना एलिनेट करता है, ना डिस्पोज ऑफ कर सकता है. कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ हिज एसेट्स, उसके एसेट्स को वो ट्रांसफर, इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दे क्या? टेढ़ा, टेढ़ा बन जाएगा. वाओ, टेढ़ा. एसेट्स को टेढ़ा नहीं कर सकता, ठीक है. एसेट्स को टेढ़ा नहीं कर सकता, विच इज ट्रांसफर, एनकम्बर्ड, डिस्पोज ऑफ एंड एलिनेट. ये 4 चीज़ें वो नहीं कर सकता. एसेट्स को टेढ़ा नहीं कर सकता. तो पहला देखा था कि उसको कोई छू नहीं सकता, अब सेकंड देखा एसेट्स को टेढ़ा नहीं कर सकता. नाउ एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर द सिक्योरिटाइजेशन. मतलब प्रोहिबिशन ऑन एक्शन अंडर सफाइजी. सफाइजी में क्या होता है? सफाइजी में क्या होता है? कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता टू रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर. कॉर्पोरेट डेटर ने कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट दिया था किसी पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है, मॉर्गेज किया था, जो भी दिया था. नाउ सफाइजी एक्ट पे भी प्रोहिबिशन है. सो प्रोहिबिशन ऑन एक्शन ऑफ सफाइजी एक्ट है, ठीक है. फोर्थ, recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied by or in possession of the CD. जो property CD के पास है आप उसका रिकवरी नहीं कर सकते हो. सो द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर, ना तो ओनर, ना ही अगर वो लीज पे गया तो लेसर, where such property is occupied by or in possession of the corporate debtor. तो लेसर और ओनर दोनों भी अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकते. कब तक बेटा? जब तक मॉरेटोरियम चल रहा है. तो मॉरेटोरियम में 4 चीज़ें बताई गई है. क्या है वो? पहला कि यहाँ पे आ जाना, पहला कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं हो सकता, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट नहीं हो सकता है कॉर्पोरेट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन, जजमेंट, डिक्री, ये वो, ठीक है. फिर एसेट्स को टेढ़ा नहीं कर सकता. एसेट्स को टेढ़ा नहीं कर सकता कौन? सीडी. फिर थर्ड है प्रोहिबिशन ऑन एक्शन ऑफ सफाइजी एक्ट. एंड फिर है रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द ओनर और द लेसर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है. उसके बाद क्या दिया? इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स अ लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस और सिमिलर ग्रांट और राइट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेक्टरल रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट इन लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स शैल नॉट बी सस्पेंडेड or terminated on the ground of insolvency subject to the condition that there is no default in payment of current dues arising for the use of continuation of the license or a similar grant or right during moratorium period. वही है जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने, ठीक है, या फिर किसी सेक्टरल रेगुलेटर ने या फिर किसी भी अथॉरिटी ने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स
कोई भी लाइसेंस दिया है, परमिशन दिया है, रजिस्ट्रेशन दिया है, कोटा कंसेशन दिया है, क्लियरेंस के लिए कुछ दिया है, कोई भी, तो वो सस्पेंड नहीं हो सकता अंटिल प्रोवाइडेड कि आप जो करंट ड्यूज़ है आपके वो पे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप ड्यूज़ नहीं पे कर रहे हो तो वो लाइसेंस है करके, वैसा नहीं होने वाला। नाउ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट डेटा एज मे बी स्पेसिफाइड शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड और इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड। कि ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट डेटर वो सब सप्लाई होना चाहिए, उसका सप्लाई जो है वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। वेयर द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और आरपी एज द केस में भी कंसीडर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व द वर्च्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटा एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ सच सीडी एज अ गोइंग कंसर्न, देन द सप्लाई ऑफ सच गुड और सर्विस शैल नॉट बी टर्मिनेटेड, सस्पेंडेड और इंटरप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोराटोरियम एक्सेप्ट वेयर सच कॉर्पोरेट डेटा हैज नॉट पेड ड्यूज अराइजिंग फ्रॉम सच सप्लाई ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड इन सच सर्कमस्टेंसेस as may be specified. So the insolvency and this one, इन पे मोराटोरियम का इफेक्ट नहीं आएगा। क्या है वो? So such transaction arrangement or other arrangement as may be notified by the central government in consultation with financial regulator or any other authority, a surety in a contract of a guarantee to a corporate debtor. इन पे क्या नहीं होगा बेटा, इन पे मोराटोरियम का इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो मोराटोरियम के इतने इफेक्ट दिए ना अच्छे अच्छे, वो कॉर्पोरेट गारंटर मतलब जो गारंटर है उस पर नहीं आएगा। मतलब उसके खिलाफ आप कर सकते हो जो आपको करना है। ये काफ़ी बड़ा है ना कि 4 तक ही है, आई गेस 4 तक ही है। ओके, 4th क्या था? ऑर्डर ऑफ मोराटोरियम शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर टिल द कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, provided that where at any time during the CIRP, if AA approves the resolution plan under subsection 1 of section 31 or passes an order for liquidation of CIRP, the moratorium shall cease to have effect from the date of such approval. तो moratorium कब cease होगा? या तो जब CIRP हो जाएगा, या तो जो adjudicating authority है वो resolution प्लान को अप्रूव कर देगा, या फिर ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन मिल जाएगा, तब मोराटोरियम जो है वो सीज हो जाएगा। तो मोराटोरियम के केस में इफ़ यू सी हियर सेक्शन 14 में, तो उसके टोटल 4 सब सेक्शन है, ठीक है, 1, 2, 2A, 3, 4, टोटल 5 पॉइंट्स है इफ़ यू कंसिडर इट इन पॉइंट। सबसे पहले बेटा हमने मोराटोरियम में क्या पढ़ा, मुझे बताना। सबसे पहले हमने मोराटोरियम में ये पढ़ा था कि मोराटोरियम जब होगा ना तो उसके 4 इफेक्ट होंगे। सबसे पहले वो 4 इफेक्ट कौन से, आपको याद है क्या? 4 इफेक्ट कौन से बोले मैंने? कि एसेट्स को आप टेढ़ा नहीं कर सकते, विच इज़ ट्रांसफर, एनकम्बर्ड, डिस्पोज ऑफ एंड एलिनेट, ये टेढ़ा नहीं कर सकते। फिर पहला क्या था कि आप कोई भी पेंडिंग सूट कंटिन्यू नहीं होगा, कोई भी नया सूट नहीं आएगा, कोई भी डिक्री ऑर्डर जो भी आर्बिट्रल कोर्ट ऑफ लॉ वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये दोनों तो हो गया। थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला था कि सफाइजी प्रोहिबिशन ऑन एक्शन ऑफ सफाइजी एक्ट। फोर्थ वाला था कि रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय ओनर लेसन नहीं हो सकता। तो 4 चीज़ें ये समझ में आ गई। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट समझा, एसेट्स को भी टेढ़ा नहीं कर सकते वो भी समझा, सफाइजी एक्ट का एक समझा, और एक प्रॉपर्टी का रिकवरी बाय ओनर और लेसर नहीं हो सकता। ये 4 पॉइंट पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि कोई भी परमिशन, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस, कोई भी ये सब चीज़ें सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी, सेक्टरल रेगुलेटर ये लोगों ने दिया है, अदर अथॉरिटी किसी ने भी दिया है, तो ये सस्पेंड नहीं हो सकती प्रोवाइडेड यू आर पेइंग द ड्यूज़, ठीक है। फिर है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू कॉर्पोरेट डेटा, मतलब जो भी सप्लायर है, सप्लायर को उसको बराबर सप्लाई करते रहना चाहिए, उसका सप्लाई जो है शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड और इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड। फिर है वेयर IRP या फिर RP जो है considers the supply of goods or services critical to protect the preserve the value of CD and manage the operation of CD as a going concern, then such supply shall not be terminated provided that you're paying for it during the moratorium, ठीक है, you're paying for it, you have to pay for it. Again this provision of subsection 1 shall not apply to, ये जो subsection 1 का provision है ना, ये 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एसेट को टेढ़ा नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन ऑन एक्शन ऑफ सफाइजी, एंड दिस वन रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये वाला जो प्रोविजंस है, ये 4 जो प्रोविजंस है, दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन होम ऐसे ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट जो नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ फाइनेंशियल रेगुलेटर और अदर अथॉरिटी
इनको नहीं एप्लीकेबल होगा। एंड अ श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू कॉर्पोरेट डेटर, इनको नहीं एप्लीकेबल होगा। सब सेक्शन 1 के जो पॉइंट्स थे, ठीक है। सेक्शन 14 डन। नाउ वी गना मूव फॉरवर्ड विद सेक्शन 15। अच्छा, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। ये करने के बाद सेक्शन 15 करेंगे। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। जब आप डिक्लेयर करते हो ना मॉरेटोरियम, सो दैट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। 1, एंश्योर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स आर नॉट टेकिंग अप साइमल्टेनियसली। 2, कीप्स द कॉर्पोरेट डेटा एसेट्स टुगेदर ड्यूरिंग CIRP। 3, ensure company may continue as a going concern. 4, prohibition on disposal of the corporate data asset. Ensure that the CD management does not transfer his assets. What's wrong with me? Assets का तो पता है, ठीक है। प्रोसीडिंग्स का भी ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली एक तो मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, फिर कीप्स द कॉर्पोरेट डेटा एसेट्स टुगेदर, देन इंश्योर कंपनी में कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, प्रोहिबिशन ऑन ट्रेड ऑफ एसेट्स। सेक्शन 15 फिर 16 करेंगे। सो पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ CIRP शेल कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोला यहाँ पर देखना, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ CIRP शेल कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कि जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट दोगे ना CIRP का, सो दैट पब्लिक अनाउंसमेंट शेल कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एंड पब्लिक अनाउंसमेंट आप कब दोगे? विद इन 3 days ऑफ योर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट दोगे, ठीक है। नाउ आपको पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या देना है? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ CD देना है। क्या देना है अगेन बताओ मुझे? नेम एंड एड्रेस ऑफ CD, नेम ऑफ द अथॉरिटी विथ विच CD इज इनकॉर्पोरेटेड, with which the corporate data is incorporated, name of the authority with which CD is incorporated, जैसे कंपनीज एक्ट या जो भी है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, details of IRP, penalties for false claims, and date on which CIRP shall close, that is 180 days from admission of application. So these are the details that you have to give in public announcement. तो 6 डिटेल्स में क्या क्या बोला मैंने कि CD का नेम एंड एड्रेस दे दो। क्या क्या बोला मैंने? 6 पब्लिक अनाउंसमेंट जब आप कर रहे हो ना बेटा, जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हो ना, पब्लिक अनाउंसमेंट आप कब कर रहे हो? फर्स्टली दैट हैज़ टू बी डन विद इन 3 days ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। और पब्लिक अनाउंसमेंट जब आप कर रहे हो तो 6 चीज़ें आपको क्या क्या देनी है? नेम एंड एड्रेस ऑफ CD, ये दे दोगे, ठीक है। फिर नेम ऑफ द अथॉरिटी विथ विच CD इज इनकॉर्पोरेटेड, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम। देखो मेरी बात सुनने की कोशिश करना। पब्लिक अनाउंसमेंट में आप क्या दोगे? पब्लिक अनाउंसमेंट में आप क्या दोगे? बेसिकली आप पब्लिक अनाउंसमेंट में यही दोगे ना कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है और हम इसको CIRP करने जा रहे हैं, तो अब ये प्रोसेस हो चुका है और हम क्लेम्स रिसीव करना चाहते हैं। तो जो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है या जो भी ऐसे केस में भी आप लोग आ जाओ और आप लोग अपने अपने क्लेम्स दे दो। तो जब आप लोग क्लेम्स दोगे तो अब ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि किसके बारे में बात हो रही है। तो आप कौन सी CD के बारे में बात कर रहे हो, उसका नेम एंड एड्रेस दे दो। वो CD जो है वो कौन से अथॉरिटी के साथ रजिस्टर है वो बता दो, ठीक है। फिर जो क्लेम सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो क्या होगा। 3 पॉइंट तो वैसे ही क्लियर हो गए। IRP जो कि पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है, IRP की डिटेल्स दे दो, ठीक है। पेनल्टीज फॉर फॉल्स क्लेम क्या होगा? ये सब लिखना पड़ेगा ताकि कोई भी फॉल्स क्लेम ना करे। तो अगर कोई फॉल्स क्लेम करे तो उसका पेनल्टी क्या होगा? और डेट ऑन विच CIRP शेल क्लोज, दैट हैज़ टू बी विद इन 180 days फ्रॉम एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सो दीज 6 डिटेल दैट यू हैव टू गिव विद पब्लिक अनाउंसमेंट। नाउ इफ आई आस्क यू पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ क्या क्या डिटेल जाएगी बेटा? तो CD का नेम एंड एड्रेस जाएगा, अथॉरिटी विथ CD इज इनकॉर्पोरेटेड, तो हो गया। थर्ड, क्लेम भेजने का, सेंड करने का लास्ट डेट क्या है, ठीक है। फोर्थ, IRP की डिटेल्स दे दो और फॉल्स अगर क्लेम किया तो उस पर क्या पेनल्टी आएगी, और डेट ऑन विच CIRP शेल बी क्लोज्ड। तो ये कुछ डिटेल्स है जो आपको देने हैं। उसके बाद आएगा सेक्शन 16 विच इज़ अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ IRP, कि IRP अब कब तक खेलेगा, उसको कब तक कैसे अपॉइंट करना है, वो सारी चीज़ें हैं।
सो सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट कि अपॉइंटमेंट कैसे करना है आईआरपी का. सो एए जो है अपॉइंट करेगी आईआरपी को विद इन 14 डेज फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट जैसे ही चालू हुआ विद इन 14 डेज ए क्या करेगी, अपॉइंट करेगी बेटा आईआरपी को. नाउ अब देखना ये है दैट एप्लीकेशन बाय एफसी और सीडी है. एफसी में जाएगा एप्लीकेशन सेक्शन 7 में, सीडी में जाएगा 10 में. नाउ दैट शेल बी अपॉइंटेड. तो जो बेसिकली ये लोग भी तो एप्लीकेशन के साथ प्रपोज करते हैं ना नेम आईआरपी का सेक्शन 7 एंड 10 में. तो सेक्शन 7 एंड 10 में ये लोग ने जो भी नाम प्रपोज किया है तो इन लोगों को अपॉइंट कर लिया जाएगा इफ देयर इज नो डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम. ठीक है, अगर एप्लीकेशन बाय ओसी है, क्योंकि एप्लीकेशन बाय ओसी में मे है, दे मे प्रपोज, राइट. और यहाँ पे कि दे हैव टू प्रपोज एफसी एंड सीडी को. तो दो ऑप्शन है, या तो उसने प्रपोज नहीं किया होगा या तो प्रपोज किया होगा. अगर प्रपोज नहीं किया है, नो प्रपोजल मेड, इन दैट केस ए जो है वो रेफरेंस देगा फॉर ए जो है वो आईबीबीआई के पास जाएगा. बोलेगा ए जो है वो आईबीबीआई के पास जाएगा, बोलेगा मुझे रिकमेंड करो. कौन रिकमेंड करो? मुझे आईपी रिकमेंड करो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रिकमेंड करो. और आईबीबीआई जो है विद इन 10 डेज उसको रिकमेंड कर देगी. समझा ये? अगर उसने प्रपोजल, इफ ही हैज़ मेड द प्रपोजल, वी आर टॉकिंग अबाउट ओसी, दैट दे हैव टू ऑप्शन, either they can make the proposal, either they or they don't. So if they have not done, so A would go to IBBI for their recommendation. IBBI would give the recommendation within 10 days. If they have made the proposal, so if the OC has made the proposal of IRP, they would though IBBI would just simply check if whether there is any disciplinary action pending against that or not. And again, if there is no disciplinary action, then shall be appointed as IRP. Again, IRP would continue till the date of appointment of RP under section 22. So this is how we are done with the appointment of IRP. सिंपल है यार, जब भी देखो ना सिंपल है. जब हम आईआरपी की बात कर रहे हैं, आर वी टॉकिंग अबाउट आरपी राइट नाउ? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट आईआरपी. तो जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट चालू हुआ ना, वहाँ से 14 डेज में आईआरपी को अपॉइंट करना है फर्स्ट. सेकेंड, एप्लीकेशन बाय एफसी और सीडी जो भी जाएगा फॉर द प्रपोज्ड आईआरपी, हम लोग ए वुड सिंपली चेक वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम और नॉट. इफ नॉट देन दे वुड बी अपॉइंटेड. ओसी केस में दो, या प्रपोजल मेड है, प्रपोजल नॉट मेड है. प्रपोजल मेड है, इन दैट केस सिंपली चेक करेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन है या नहीं. नॉट मेड है तो ए वुड रिक्वेस्ट फॉर अ रिकमेंडेशन टू आईबीबीआई. आईबीबीआई वुड रिकमेंड दी आईपी और आरपी विद इन 10 डेज. समझा? और आईआरपी जो है ही वुड कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी अंडर सेक्शन 22. डन यहाँ तक. देन सेक्शन 17, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सीडी बाय आईआरपी. अब मैनेज कैसे करेगा अफेयर्स ऑफ सीडी बाय आईआरपी? कैसे करेगा आईआरपी, कैसे सीडी के अफेयर्स को मैनेज करेगा? सो आईआरपी टू मैनेज सीडी बिजनेस प्लस पावर ऑफ प्रमोटर या एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सस्पेंस. अब ये क्या बोल रहा है वो देखना. We have to study this one. All right. So section 17(1) of the code provides that from the date of appointment of IRP, the management of affairs of the CD shall vest in the IRP. All right. कि मैनेजमेंट जो है वो चला जाएगा IRP के पास CD का. The powers of the board of directors or the partners of corporate debt as the case may be shall stand suspended. तो वही बोला ना, IRP to manage CD business plus power of partner plus board of director would suspend. ठीक है, तो ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल रिपोर्ट टू आईआरपी एंड प्रोवाइड एक्सेस टू सच डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ द सीडी एज द केस मे बी. Then the financial institution maintaining accounts of CD shall act on instruction of the interim resolution professional. This is 17(1). This is 17(2). That the code further provides that the IRP shall vest with the management of corporate debtor, shall act and execute in the name and on behalf of the corporate debtor all deeds, receipt and other document, take such action in manner subject to such restriction, have the authority to access the electronic record, have the authority to access the books of account, records, relevant documents, etc. Do you want me to read it again for you? Do you want me to read it again for you? देखना है.
सो नाउ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सीडी बाय आरपी. सबसे पहले 17(1) एंड 17(2) दो ही सेक्शन सबसेक्शन व्हाटएवर यू कॉल इट एज. सो सेक्शन 17(1) क्या बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है ना सीडी का, दैट वुड वेस्ट विथ व्हाट आईआरपी. ठीक है. पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स ऑफ सीडी वुड स्टैंड सस्पेंडेड एंड एक्सरसाइज बाय आईआरपी. ठीक है. मतलब उसका मैनेजमेंट, जो सीडी का मैनेजमेंट है वो आईआरपी के पास चला जाएगा. जो भी पावर्स थे पार्टनर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, नाउ दैट वुड स्टैंड सस्पेंडेड एंड दैट वुड वेस्ट विद आईआरपी. ये 2 पॉइंट तो समझ ही आ रहा है. 2 पॉइंट और है. द ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स ऑफ सीडी शेल रिपोर्ट टू आईआरपी एंड प्रोवाइड एक्सेस टू. मतलब जो भी ऑफिसर्स है CD के, that would report to IRP now. And financial institution maintaining accounts of CD shall act on instruction of the IRP in relation to such account and furnish all information required. तो financial institution जो भी है वो भी वर्क करेगी as per instruction of the IRP. Now section 17(2) में क्या बोल रहा है, that further provide that IRP vested with the management of CD shall act and execute in the name and on behalf of CD all date receipts and other documents any, take such action in the manner and subject to such transaction as may be specified by the board, have the authority to access the electronic record, have the authority to access the books of account records etc. So ये वाला केस पढ़ लेना एक बार. सुभाश्री रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस NM सुब्रमण्यम. तो इसमें क्या हुआ था, एनक्लेव डायरेक्टेड दैट आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी एंड डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टैंड सस्पेंडेड, बट दैट डज नॉट अमाउंट टू अ सस्पेंशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द CD. To ensure that the CD remains as a going concern, all the directors' employees are required to function and to assist the RP who manages the affairs of the CD during the moratorium. If one or other officer or employee had the power to sign a check on behalf of the CD prior to the order of moratorium, such power does not stand suspended on suspension of board of directors, nor can it be taken away by the RP if the person empowered to sign check refuses to function on the direction of RP or misuse the power. It is always open to RP to take away such powers after issuing notice to the person concerned. समझ आया इतना? So now let's understand what are the duties of IRP. What are the duties of IRP? So IRP would collect all the information remaining relating to the assets, finances and operation of the CD, plus determine the financial positions of the CD, including the information relating to business operation of previous 2 years, financial and operational payment for the previous 2 years, and list of all assets and liabilities एज ऑन द डेट. तो सबसे पहले मेरे को ये बताना आईआरपी का क्या क्या काम है. आईआरपी जैसे ही आईआरपी बनेगा, कमेंसमेंट ऑब्वियसली उसको अपॉइंट किया, वो पब्लिक अनाउंसमेंट देगा 3 दिन में, ये तो सबको पता है. सबसे पहले वो क्या करेगा, जब पब्लिक अनाउंसमेंट एरिया उसको वो कलेक्ट करेगा सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एसेट्स, फाइनेंसेस, ऑपरेशन एंड ऑल दैट बिजनेस, देन इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वो कलेक्ट करेगा. कौन से? बिजनेस ऑपरेशन फॉर द प्रीवियस 2 years, financial and operational payment for the previous 2 years, and such a list of assets and liabilities as on the intimation date, and such other matters may be prescribed. तो बिजनेस ऑपरेशन क्या थे 2 साल के, एंड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट फॉर द प्रीवियस 2 years, ये सब दिखेगा. So receive and collect all information submitted by creditors to him pursuant to public announcement. Constitute COC within 7 days of his appointment. Monitor the assets of CD and manage to its क्या ये monitor the assets of CD and manage its operation until a resolution plan is appointed. File the information collected with the information utility. Take control and custody of any assets over which the corporate data as ownership right is recorded in balance. This including asset over which CD has ownership right, asset ownership right which may be located in a foreign country as well, asset over which the corporate debtor, asset that may or may not be in possession of CD, tangible asset whether movable or immovable, intangible asset, security including share held in any subsidiary or this one. So these are the assets that IRP has to take care of to perform such other duties as may be specified by the board. So these were the duties of IRP: to collect all the claims, what, तो ये वाले 2 साल पुराने वाले,
रिसीव करना, क्लेम कोलैट करना, कॉन्स्टिट्यूट करना कमेटी, मॉनिटर करना एसेट्स को टिल द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, फाइल करना इन्फॉर्मेशन विद आईयू, एंड देन कौन से एसेट्स का ध्यान रखना, तो ये सारे एसेट्स का, दैट्स इट. Now look at section 18. Section 18 क्या बोल रहा है? The assets that cannot be taken over under the said section. मतलब section 18 also specifies the assets that cannot be taken over under the said section. The explanation appended to section 18 provides that for the purpose of this section, the assets shall not be include the following. जो एसेट्स का ध्यान रखने बोला है ना, तो एसेट मतलब जो एक्सक्लूडेड एसेट्स की बात की है शायद यहाँ पे देखना. एसेट ओन बाय थर्ड पार्टी इन पोजेशन ऑफ द सीडी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, एसेट ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडियरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, such other asset as may be notified by central government. So the RP is not only required to give notice of the meeting to members of COC, but also to the members of suspended board of director or partner of CD as the case may be. The OCs or their representative may also be informed to attend the meeting of COC if the amount of aggregate dues is not less than 10% of debt. तो ये बातें जो है ये सेक्शन 18 में कही गई है. क्या बातें सेक्शन 18 में कही गई है? दैट सेक्शन 18 ऑल्सो स्पेसिफाइज द एसेट्स दैट कैन नॉट बी टेकन ओवर अंडर द सेट सेक्शन. तो ये एसेट्स को आप टेक ओवर नहीं कर सकते हो. द एसेट्स दैट कैन नॉट बी टेकन ओवर अंडर द सेट सेक्शन. द एक्सप्लेनेशन मतलब इसमें एसेट ओन बाय थर्ड पार्टी इन पोजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, हेल्ड अंडर एसेट्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टी मतलब ओके अंडरस्टूड. सो बेसिकली थर्ड पार्टी के एसेट्स पड़े हैं कॉर्पोरेट डेटर के पास. नाउ दैट एसेट्स कैन नॉट बी टेकन ओवर, अंडरस्टूड. एसेट ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडियरी ऑफ सीडी, दैट एसेट कैन नॉट बी टेकन ओवर. सच अदर एसेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नोटिफाई. एंड ओसीज जो है वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग इफ देयर एग्रीगेट ड्यूज इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेट, ठीक है. सेक्शन 19 देखना भी क्या है. पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू IRP. जो भी पर्सनल है वहाँ के प्रमोटर्स, अदर एसोसिएटेड मैनेजमेंट, दे हैव टू डू दैट. फर्स्ट वाला देखना पॉइंट ये है दैट इफ डू नॉट एक्सटेंड कोऑपरेशन देन क्या होगा? इफ डू नॉट एक्सटेंड कोऑपरेशन टू IRP देन IRP जो है वो अप्लाई करेगा फॉर ऑर्डर टू ए एंड ऑर्डर देगा द पर्सन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ IRP. तो बेसिकली इसका फंडा ये है, जो पर्सनल है ना ऑफ सीडी, दे हैव टू कोऑपरेट विद IRP, बट इफ दे डू नॉट एक्सटेंड द कोऑपरेशन विद देम विद IRP, then IRP would apply to A and A would give order to the person to comply with instructions of IRP. Then section 20, what does it say, guys? Section 20, that is management of operations of CD as a going concern. So firstly says that IRP shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property of the CD and manage the operation of CD as a going concern. So IRP to manage operation of CD as a going concern, first point. Second क्या था? For the purpose of, इसमें कितने सारे points है वो देखना है मुझे. Hold on, can you just hold on please? I just would like to check this one. अच्छा, सेक्शन 20 है ये, उसके बाद 21, 22 यहाँ पर है, ठीक है, फिर 23 यहाँ पर, फिर रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे सारे. सेक्शन 25 फिर COC का चालू हो जाएगा. आई जस्ट वुड वांट टू सी दिस वन कि ये कहाँ तक जा रहा है इसमें, क्योंकि रेगुलेशंस भी है, काफ़ी रेगुलेशंस है, यहाँ तक है ना अभी, अप्रॉक्स है ज़्यादा. चलो सेक्शन 20 क्या देखा हमने. सेक्शन 20 सिर्फ इतना सा बोल रहा है दैट IRP टू मैनेज ऑपरेशंस ऑफ CD एज अ गोइंग कंसर्न. IRP टू मैनेज ऑपरेशन ऑफ CD एज अ गोइंग कंसर्न, की कंपनी चालू है, कंपनी गोइंग कंसर्न है, जो कंपनी के नॉर्मल काम है वो चालू है, तो IRP को उस तरह से मैनेज करना है ऑपरेशंस ऑफ CD. So the purpose of subsection 1, the interim resolution professional shall have the authority. अब IRP क्या क्या कर सकता है?
तो वो अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट्स को, लीगल अदर प्रोफेशनल एज मे बी नेसेसरी, एंटर कर सकता है इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स टू अमेंड और मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स विच वर एंटर्ड इनटू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ CIRP, to raise interim finance provided that no security interest shall be created over any encumbered property of the CD without the prior consent of the creditors whose debt is secured over such encumbered property, provided that no prior consent of the creditors shall be required where the property is not less than the amount equivalent to twice the amount of the debt. ठीक है. इंस्ट्रक्शन टू पर्सनल नेसेसरी फॉर कीपिंग CD एज अ गोइंग कंसर्न, to issue instruction to personnel of the CD as may be necessary for keeping the CD as a going concern, all such action that may be necessary to keep the CD as a going concern. अच्छा, तो ये वाला काटना है आई गेस. लेट मी चेक. ये इंटरिम फाइनेंस का डेफिनेशन दिया है. ठीक है, ये तो काटना है फॉर श्योर. चलो पहले इतना कर लेते हैं. So section 20 is saying that कि management of operations of corporate data as a going concern, इसके लिए IRP जो है वो क्या करेगा, वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी लीगल प्रोफेशनल्स को to do the necessary work. He can enter into contract and he can also modify the contract, the terms of the contract which have been entered before the CIRP. ठीक है. फिर वो इंटरिम फिनांस भी रेज कर सकता है प्रोवाइडेड वो उस पर कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं दे सकता है until unless that has been approved with the consent of creditors. ठीक है. provided secured creditors, provided that no prior consent of the creditors required where property is not less than, अगर प्रॉपर्टी जो है ठीक है इज नॉट लेस देन द अमाउंट इक्विवेलेंट टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डेट. जितना डेट है कंपनी में, डेट जो है वो 100 करोड़ का है. ठीक है. कंपनी की प्रॉपर्टी 200 करोड़ की है. ठीक है, या उससे ज़्यादा है. इन दैट केस वो इंटरिम फाइनेंस रेज करेगी तो उसको क्रेडिटर से पूछने की जरूरत नहीं है. इंस्ट्रक्शन देगा पर्सनल को टू कीप द CD as a going concern, all such action necessary. Then what is interim finance? Interim finance means any financial debt raised by resolution professional during the CIRP and such other debt as may be notified by this fund. In case corporate debtor goes into liquidation, so the insolvency resolution process costs which include interim finance and costs incurred in raising such finance are paid from the sale of liquidation assets in priority. मतलब कि ये जो interim finance आपने raise किया है, once the corporate debtor अगर liquidate हो जाता है by chance, तो insolvency resolution cost plus ये वाला इंटरिम फाइनेंस ये जो है का जो कॉस्ट है ये प्रायोरिटी में पे किया जाएगा एज पर सेक्शन 53 जो कि आएगा लिक्विडेशन के चैप्टर में. तो ये वाला क्या है, सेम है. ठीक है. चलो सेक्शन 20 का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. वी गोना चेक दैट. Section 20 of the code makes provisions for raising interim finance while managing the operations of CD as a going concern. A company which may enters the insolvency resolution proceeding finds it extremely difficult to obtain credit as lenders are often hesitant to lend to a troubled debtor. In order to address this issue, the interim finance is treated as part of अच्छा इसीलिए उसको पहले पे किया जाता है. ठीक है. Now what is section 22 that says? Section 22 सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. सो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, देन कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, देन एप्लीकेशन बिफोर A, देन कंफर्मेशन ऑफ IBBI. तो बेटा देखना इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. अपॉइंटमेंट ऑफ IRP. सो पहले सबसे पहले CUC की जो मीटिंग होगी टू बी हेल्ड, माय बैड, व्हाई द हेल दिस इज स्क्रूड अप. थोड़ा सा इसको आगे ले लो क्या, तो ये मोड जा रहा है ना. चलो. सो अपॉइंटमेंट ऑफ RP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है. तो बेटा सेक्शन 22 में जो है IRP अब RP में कन्वर्ट होने वाला है. ठीक है. तो सबसे पहले जो COC की जो फर्स्ट COC की मीटिंग है टू बी हेल्ड विद इन 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है विद इन 7 days उसकी मीटिंग होगी. उस मीटिंग में बाय 66% मेजोरिटी वो लोग या तो IRP को RP में कन्वर्ट करेंगे या तो रिप्लेस करेंगे IRP को और दूसरा RP लेकर आएंगे. देन सेक्शन 2 विच इज कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन. सो 22(3)A जो है वो बोल रहा है
if COC appoints IRP as RP, so communicate करेंगे decisions to IRP, CDA plus IRP itself has to plus IRP has to give written consent of the appointment. 22(3)(b) बोला है, if COC replaces IRP, in that case COC file an application for appointment of proposed RP plus RP's writing consent has to be given to A. A would forward the name of the proposed RP for confirmation to IBBI. IBBI would confirm within 10 days whether any disciplinary action is there or not. Would confirm the name. Okay, so if board does not confirm the name of the proposed RP within 10 days of receipt of the name of the proposed RP, so A shall by order direct the IRP to function as RP until board confirms the name of the new IRP, that is 22(5). तो सबसे पहले देखना यहाँ पर क्या बात हुई है। 22 जो है सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी की बात कर रहा है। तो जैसे ही सीओसी कॉन्स्टिट्यूट, फर्स्ट सीओसी का मीटिंग हैज़ टू बी डन विद इन 7 days ऑफ सीओसी व्हेन सीओसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड इन दैट मीटिंग either they have to what they have to do, they by majority of vote of 66%, either they have to appoint IRP as RP or they replace IRP and appoint new IRP. So 22(3)(a) and 22(3)(b) is there. 22(3)(a) says that if COC appoints IRP as RP, so communication of that decision to IRP, CD, AA plus IRP has to give their return consent. If they replaces IRP, then COC has to file the appointment of proposed RP plus RP's return consent to AA. A would forward the name of the proposed RP for confirmation to IBBI. IBBI would confirm the name within 10 days. अगर नहीं करती within 10 days, तो IRP would function as RP till the time new RP is appointed or new name is recommended. ठीक है, फिर रेगुलेशन 3 की बात होती है यहाँ पे, एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर देखना, एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो ये रेगुलेशन 3 है, एंड देन वी हैव टू डू this one, which is section 23. So still a lot of things is there. Then section 25, then this and this. अभी तो है काफ़ी रेगुलेशंस, काफ़ी आ जाता है। 3 से कहाँ 39 तक रेगुलेशन बीच बीच में घुस जा रहे हैं इसमें, और ये वाला पार्ट बहुत मेन है। ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल था। तो what I'm gonna do is I'm gonna take a little break. For you it would be no break, of course. I'm gonna take a little break and I'll be back. Bye for now.